Hi everybody, I hope it is better now. Hello everybody, welcome once again. And I hope the video is better and the audio is better now. Please confirm that you can see me. Ninad is saying much better than earlier. Akash is saying yes, clear. Jayashri saying clear. Window बंद कर देना आवाज बाहर. Hello Renu ji, Amit ji. Good evening Shaista. Okay, so we'll just wait for one more minute for people to join in and then we'll begin. I'm sorry for the video connection. Somehow the internet is fluctuating a little bit. But we still have to be grateful for what we have, right? Echo tha se suno. We'll just wait for one more minute. Hello Ishwar ji. Ramesh is saying clear now. Thank you so much for confirming. Hello Vipul bhai. Jasmine. Hello Padma. Good evening. So let's begin. I think we've lost about 5-10 minutes, but we can make it up. So we've been talking about, I hope that everybody participated in the 9 o'clock event today, which our Honorable Prime Minister had asked us to, humbly ask us to light the diyas and candles. And that actually was an attempt to actually unleash the power of collective consciousness. हम उसके बारे में पहले से ही बात कर रहे, पहले दिन से बात कर रहे कि जब कोई चीज़ हम कलेक्टिवली करते हैं तो उसका जो पावर होता है दैट इज़ इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द नंबर ऑफ पीपल डूइंग दैट एक्टिविटी. तो अगर कोई भी इंसान, मल्टीपल लोग एक साथ में एक ही सोच लेके एक साथ में अपने माइंड में रखते हैं तो द पावर ऑफ द क्वांटम फील्ड क्रिएटेड इज़ द स्क्वायर ऑफ द नंबर ऑफ पीपल होल्डिंग दैट थॉट इन देयर माइंड. नाउ इमेजिन जब 130 करोड़ लोग एक साथ में मिल करके एक ही सोच को रखते हैं कि वी आर ऑल पावरफुल, वी आर हेल्दी, वी आर फिट, वी आर विद वन अनदर, we are together in this fight against the coronavirus. Imagine the power. The power is 130 crore multiplied by 130 crores, which is a huge number, very, very huge number. Okay. So I'm sure this little activity that we all did together today is going to have a huge impact on our personal lives, on our body, on our minds, but not only us personally, but our families, our communities, our countries, and the entire globe as a whole. It is going to have a huge and a tremendous impact. Okay? So let's move forward. हम कुछ दिनों से इस कामयाबी के principles के बारे में बात कर रहे हैं, success principles के बारे में बात कर रहे हैं. And just to recap, yesterday's principle was one of the most important principles of success, and that was taking 100% responsibility for your life and the results that you produce in your life. और हमने कहा कि हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदारी हमें लेनी है, क्योंकि फाइनली जो चीज़ हमारे लाइफ में हो रही है वो हम ही ने क्रिएट किया है, तो हम दूसरे किसी को कैसे दोष दे सकते हैं? क्योंकि हमारे लाइफ में जो कुछ भी क्रिएट हो रहा है, इट इज़ ऑल क्रिएटिंग थ्रू द पावर ऑफ आवर माइंड. Everything happens in our life twice, first inside and then outside. देखो, अगर आपको एक घर खरीदना है तो सबसे पहले वो सोच कहाँ पे आती है? अंदर. उसके बाद आप उसके कुछ एक्शंस लेते हो, उसके रिसोर्सेज जमा करते हो और फिर आप घर खरीदते हो. अगर आपको इंजीनियर बनना है तो सबसे पहले सोच कहाँ आती है? अंदर. उसके बाद आप पढ़ाई करते हो, कॉलेज ढूंढते हो, एडमिशन लेते हो, उस डिग्री को कंप्लीट करते हो. So everything that happens in a life happens twice. This is known as the law of the mind. The law of the mind states that everything that happens in our world or in our life
happens twice, first inside and then outside. तो इसका मीनिंग ये हुआ कि हमारे जीवन में जो कुछ भी आ रहा है, इट इज़ बिकॉज वी हैव थॉट अबाउट इट नोइंगली और अननोइंगली. अब ज़्यादातर लोग कहते हैं कि मैंने सर प्रॉब्लम्स के बारे में तो सोचा नहीं था, तो मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे हैं. लेकिन बहुत सारी सोच जो हम रखते हैं हमारे माइंड में, वो अननोन नॉट नोन होता है. मतलब हम उसके लिए अवेयर नहीं होते. काफ़ी सारी सोच हमारे माइंड में ऐसे होते रहती है. वी आर अनअवेयर ऑफ द थिंकिंग, वी आर नॉट इवन कॉन्शियस अबाउट दैट थिंकिंग. लेकिन एक चीज़ हमें ध्यान में रखना ज़रूरी है कि वॉट एवर इज़ हैपनिंग इन आवर लाइफ इज़ आवर ओन क्रिएशन. तो जब कोई भी चीज़ हमारी खुद की क्रिएशन है तो हम दूसरे को दोष कैसे दे सकते हैं. दैट इज़ वाई द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस is taking 100% responsibility for your life and the results that you produce in your life. अब इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना है तो हमें 3 चीज़ें ज़िंदगी भर छोड़नी है. व्हाट वर द 3 थिंग्स इफ यू रिमेंबर? कौन सी 3 चीज़ें छोड़नी है ज़िंदगी भर? सबसे पहले दूसरों को ब्लेम करना. ओके, दूसरों को ब्लेम करना बंद करना है. परिस्थितियों के बारे में कंप्लेन करना छोड़ना है और जस्टिफिकेशन बंद करना है. अगर हमें रिजल्ट्स मिलते नहीं है तो हमारे पास हमेशा जवाब तैयार होता है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, इसने ये किया, उसने वो किया. कोई ना कोई जवाब हमारे पास हमेशा तैयार होता है. दैट इज़ नोन एज जस्टिफिकेशन. सो वी नीड टू गिव अप दीज 3 थिंग्स परमानेंटली इन आवर लाइफ एंड टेक चार्ज ऑफ आवर लाइफ. दैट मीन्स कम आउट ऑफ द विक्टिम मेंटालिटी and come into a position of power that I am the creator of my life and nobody else can do this for me. Okay? विक्टिम्स कैसे जीते हैं? वो हमेशा ये कहते हैं कि मैं बेचारा क्या करूँ, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, बाजू वाले परेशान करते हैं, बॉस परेशान कर रहा है, ये ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम है. सो दीज आर पीपल आर ऑलवेज ब्लेमिंग, कंप्लेनिंग एंड जस्टिफाइंग द सिचुएशन. दैट इज़ कॉल्ड विक्टिम मेंटालिटी. हमें उसमें से बाहर आ करके वी नीड टू लिव अ लाइफ वेयर वी बिलीव दैट वी आर द क्रिएटर्स ऑफ अ लाइफ. जब हम ये मानते हैं कि हम ही अपने जीवन के शिल्पकार है, मतलब आर्किटेक्ट है, तो फिर हम दूसरे को ब्लेम नहीं करेंगे. ओके, टुडे आई एम गोइंग टू कवर वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस एंड दैट इज क्लीनिंग अप योर मैसेज एंड योर इनकम्प्लीट्स. मतलब हमारे लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो इनकम्प्लीट होती है. हम प्रोजेक्ट शुरू तो करते हैं लेकिन उसको फिर एंड नहीं करते. इसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट्स. जैसे कंप्यूटर में समझो आपने एक एप्लीकेशन खोला, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोला, उसको आपने खोल के रखा हुआ है, थोड़ा काम किया, उसके बाद आपने एक्सेल खोला, थोड़ा उधर भी काम किया, फिर आपने अपने कोई अकाउंटिंग एप्लीकेशन को खोला, फिर उसके फिर भी थोड़ा काम किया, फिर एक में काम किया, फिर दूसरे में. इस तरह से आपने एक एक करके एप्लीकेशंस खोलना चालू किया और बहुत सारे एप्लीकेशंस एक साथ में खुले हैं. तो कंप्यूटर की स्पीड के पे क्या असर होगा? व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन टू द स्पीड ऑफ द कंप्यूटर? It is naturally going to slow down because there are so many things going on in the computer. There's so much in the memory. तो जब तक हम एक एप्लीकेशन को बंद नहीं करते तब तक वो मेमोरी खाए रखता है. इसी तरह हमारे फ़ोन में भी ऐसे होता है. एक ऐप को स्टार्ट करो, फिर दूसरे ऐप को शुरू करो, फिर तीसरे ऐप को चालू करो, फिर चौथे ऐप को यूज़ करो. इस तरह से बहुत सारे ऐप्स जब ऑन होते हैं और हमारे मेमोरीज पूरी भरी हुई होती है तो हमारा फ़ोन भी स्लो हो जाता है. इट इज़ नॉट एबल टू फंक्शन. तो इसी तरह हमारे जो इनकम्प्लीट काम है, जो बहुत सारी चीज़ें हमने आधी अधूरी छोड़ी हुई है, वो हमारे अटेंशन यूनिट्स को लेते हैं. इसको हम कहते हैं अटेंशन यूनिट्स. जो चीज़ हमारा अटेंशन ले लेता है, जब तक वो ख़त्म नहीं होता तब तक वो माइंड में चलते ही रहता है, चलते ही रहता है. और जब तक वो चलते रहता है तो यू कैन नॉट बी इन द प्रेजेंट मोमेंट because your mind is always in the past, always thinking about, oh I need to do this, I need to finish this, ये भी बाकी है, वो भी बाकी है, ऐसा भी बाकी है, वैसा भी बाकी है. सो ये सारी चीज़ें हमारी एनर्जी बहुत खा जाता है और इसलिए हम अपने प्रेजेंट मोमेंट में अच्छी तरह से जी नहीं सकते हैं. और क्योंकि हम प्रेजेंट में अच्छी तरह जी नहीं सकते तो फिर एक नई चीज़ हमारे जीवन में हम कैसे ला सकते हैं? अगर पुरानी चीज़ों को हम अपने माइंड में पकड़ के रखेंगे तो नई चीज़ लाना मुश्किल है. दिस इज़ ट्रू फॉर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. अगर हमने किसी ने हमारे साथ बुरा किया, उसको हमने माफ़ नहीं किया, तो वो चीज़ हमने अपने माइंड में पकड़ के रखी है. नाउ दिस इज़ डेफिनेटली गोइंग टू इम्पैक्ट आवर प्रेजेंट एंड इफ़ इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट द प्रेजेंट इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू इम्पैक्ट आवर फ्यूचर. सो हमें क्या करना है? कोई भी चीज़ को जब हम शुरू करते हैं, देखिए हम कैसे पूरा साइकिल कैसे होता है. सबसे पहले हम माइंड में सोचते हैं कि हमें कुछ करना है. उसके बाद हम क्या करते हैं? प्लान करते हैं कि हाँ हमें इस तरह से करना है.
फिर हम उस चीज़ को काम करना शुरू करते हैं, दैट इज स्टार्ट. सो फर्स्ट इज think that you want to do something. Second is plan. Third is start. Fourth is continue doing it. Fifth is finish it. And sixth is complete it. तो ये सारी साइकिल हमें कंप्लीट करना ज़रूरी है. लेकिन कितनी सारी हमारी चीज़ें इनकम्प्लीट होती है. देखिए कितनी सारी चीज़ें आप ध्यान से देखेंगे तो घर में कितनी सारी इनकम्प्लीट चीज़ें दिखती है, ऑफिस में कितनी सारी इनकम्प्लीट अनफिनिश्ड पेपर्स, पेंडिंग टास्क्स, और छोटे छोटे चिट्स लगे होते हैं पेंडिंग टास्क के, ये भी करना है वो भी करना है. सो इमेजिन द अमाउंट ऑफ अटेंशन यूनिट्स इट्स ऑल टेकिंग अप. और हमारे माइंड के जितने अटेंशन यूनिट्स कंज्यूम होंगे इतनी हमारी मेमोरीज कंज्यूम हो जाएगी और उससे हमारी इफेक्टिवनेस कम होगी. वी आर नॉट एबल टू परफॉर्म एट द लेवल दैट वी वांट टू. तो हमारे माइंड को क्लियर करने का एक ही तरीका है कि हमें चीज़ों को कंप्लीट करना है. रादर देन हैविंग 15 अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट्स, it is better to have 3 finished projects. Rather than have 10 books which are partly written, it is better to have 1 book which is completely written. Okay, so instead of having multiple things which are incomplete, it is always better to have a few things which are complete. And when you complete, you see that there is so many things that open up for you. When you complete, there is a complete feeling that you've completed that thing. It gives you a lot of joy and satisfaction, और वो joy and satisfaction से हम दूसरी चीज़ों को आसानी से हासिल कर सकते हैं. Okay, so this is one very very important point that we need to understand to live fully in the present moment. Okay, now हम सबको पता है कि चीज़ों को complete करना ज़रूरी है, तो भी हम complete क्यों नहीं करते? Why don't we complete it? Does anybody have an answer? हम सबको पता है कि कंप्लीट करेंगे तो उसमें काफ़ी फ़ायदा होगा, काफ़ी अच्छी चीज़ें होगी, लेकिन हम उसको कंप्लीट क्यों नहीं करते? एनीबडी हैज़ एन आंसर? व्हाई डोंट वी फिनिश इट? देयर आर मल्टीपल रीजंस एक्चुअली. या समटाइम्स इट इज़ सम ऑफ आवर मेंटल एंड साइकोलॉजिकल ब्लॉक्स. हमें अंदर से कुछ रोक रहा है उस चीज़ को कंप्लीट करने से. कहीं ना कहीं हमको लगता है कि कंप्लीट हो जाएगा तो कुछ अच्छा हो जाएगा. और अगर हमारे सबकॉन्शियस प्रोग्राम ये है कि हम अच्छी चीज़ें डिज़र्व नहीं करते हैं तो हम उसको कंप्लीट ही नहीं करते. कहीं ना कहीं हमारा माइंड ये सोचता है कि अच्छी चीज़ें मेरी लाइफ में मैं डिज़र्व नहीं करता हूँ, मुझे अच्छी चीज़ें कहाँ से मिल सकती है. तो वो चीज़ें हम कंप्लीट करते ही नहीं है. सो वी पर्पसली डिफ़र थिंग्स. हमें पता है कि वो चीज़ हमें फ़ायदा करेगा, लेकिन फिर भी हम उसको प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, डिले करते हैं, बाद में करेंगे, इस तरह से हम करते ही नहीं उसको. So sometimes it represents our psychological blocks, sometimes it is our mental blocks, sometimes we just don't have the necessary skills and talents, sometimes we don't have the systems and processes to complete it, या कुछ ना कुछ तरीका है, कोई ना कोई रीज़न है जिसकी वजह से कंप्लीट नहीं हो रहा है. तो इनकम्प्लीटनेस को हमारे जीवन में से बाहर निकालना है. वी नीड टू गेट इनटू कॉन्शियसनेस ऑफ कंप्लीटनेस. एक ऐसी सोच में आना है, एक ऐसे कॉन्शियसनेस में आना है जहाँ पे हम ये सोच के चलेंगे कि जो चीज़ शुरू करेंगे उसको ख़त्म करके ही रहेंगे. नाउ दिस इज़ ट्रू फॉर एवरीबडी. इट्स नॉट ओनली ट्रू फॉर यू ऑल, इट इज़ ऑल्सो ट्रू फॉर मी. मैं भी जब ये प्रिंसिपल्स को फिर से सिखाता हूँ तो मैं खुद रियलाइज़ करता हूँ कि मैं मेरे लाइफ में भी कितनी सारी चीज़ें इनकम्प्लीट छोड़ देता हूँ कभी कभी. तो उस वजह से माइंड एकदम क्लॉग हो जाता है. बहुत सारी चीज़ों पे हम एक साथ में फोकस करते हैं एंड इट रियली गेट्स अस स्टक. ओके, so we need to make sure that we are focusing and completing one task at a time. अगर हम कुछ कम प्रोजेक्ट्स करेंगे लेकिन फिर भी हम उसको कंप्लीट करके छोड़ेंगे. ओके, सो देर आर 4 ways in which you can start. It is called the 4 Ds of completion. तो या तो कोई भी जितने भी हमारे टास्क है उसको हम कैसे डील करें. फर्स्ट तरीका ये है कि या तो उसको कर दो, इसको हम कहते हैं डू इट. ओके, द फर्स्ट मेथड इज डू इट. सेकंड इज अगर आप खुद नहीं कर सकते, अगर आपको लगता है कि कोई और कर सकता है आपके लिए, तो व्हाट यू कैन डू इज डेलीगेट इट. डेलीगेट मतलब किसी और को आप सौंप दो वो काम ताकि वो कर सके. रिमेंबर उसको बोलना है कि भाई ख़त्म करके मुझे बताना कि कंप्लीट हुआ कि नहीं. ओके, सो फर्स्ट इज आइदर डू इट, सेकंड इज डेलीगेट इट, थर्ड इज अगर आपको लगता है कि ये टास्क इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप उसको रीशेड्यूल करके बाद में कर दो. सो इट इज़ कॉल्ड डिले इट. ओके, और लास्ट इज कुछ टास्क ऐसे होते हैं जो हमें पता है कि इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप उसको डंप कर दो. इसको हम कहते हैं डिलीटिंग दैट टास्क.
उस टास्क को परमानेंटली ख़त्म कर दो ताकि उसको आप अपने सामने लाओ ही नहीं। इस तरह से आप अपने माइंड को फ्री कर सकते हो। व्हाट इज दिस कॉल्ड? 4 Ds ऑफ कंप्लीशन। फर्स्ट इज डू इट, डेलीगेट इट, थर्ड इज डिले इट और डंप इट। उसको या तो कंप्लीटली छोड़ दो। नाउ अ लॉट ऑफ पीपल आर गिविंग रीजंस व्हाई दे आर नॉट एबल टू फिनिश थिंग्स। ओके, सो कभी कभी रितु जी सेज टू मच ऑफ इंटरप्शन, समबडी एल्स सेज लैक ऑफ फोकस। ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट थिंग्स, बट हम सबको पता है कि इसको करने के लिए हम उसके ऊपर कुछ ना कुछ कर सकते हैं, बट समहाउ वी स्टिल डोंट डू इट। सो डेफिनेटली represent समथिंग विच इज़ होल्डिंग अस बैक फ्रॉम अचीविंग इट। ओके, और या तो हम बहुत सारी चीज़ें एक साथ में करने की कोशिश करते हैं और तब ये सारे प्रॉब्लम शुरू होते हैं। ओके, सम पीपल आर सेइंग नॉट गेटिंग वॉइस, not able to hear clearly. I hope it is clear for most people. Can somebody confirm, please? Are you able to hear me clearly? Any one person, if you can confirm. Yes, Amit Mishra is saying clear, so that's nice. Nilesh Parekh is also saying very clear, so thank you so much for confirming. Everybody else, please check your internet connections. It's either at my end or it's at your end, you know, so we just have to work on it, and we have to be really grateful to Facebook for making this happen. You know, every day we're able to connect with so many people, and I'm able to share what I have learned from my gurus. Okay, now अगर हम अपने घर में ही देखें ना, तो कितने सारी चीज़ें इनकम्प्लीट है। जैसे आप देखेंगे कितना सारा क्लटर पड़ा हुआ होता है, अनफिनिश चीज़ें होती है, कितने सारे कबर्ड्स आप खोलोगे तो पूरा अंदर भरा हुआ रहता है, कितने सारे टॉयज़ ऐसे होते हैं जो हमने यूज़ नहीं किए होते हैं और बच्चे भी उसको यूज़ नहीं करते हैं, कितनी सारी किताबें ऐसे पड़ी हुई है। ऑल दीज आर अनफिनिश्ड थिंग्स, ऑल दीज आर नोन एज अनफिनिश्ड थिंग्स विच आर क्रिएटिंग सम वॉट ऑफ इरिटेशन फॉर यू। इरिटेंट्स है, इसको हम कहते हैं इरिटेंट्स। और जब कोई चीज़ हमें इरिटेट करती है तो हम हमेशा जब वो चीज़ को देखते हैं ना तो थोड़ा सा इरिटेशन होता है। तो अगर हम बार बार इस तरह के इरिटेशंस हमारे एनवायरनमेंट में देखेंगे तो हम सबकॉन्शियसली हमारे माइंड को कहते हैं कि ये छोटी सी चीज़ भी तू नहीं कर सकता तो तू बड़ी चीज़ कहाँ से करने वाला है। इतनी छोटी सी चीज़ भी तू अगर नहीं कर सकता तो तू बड़ी चीज़ कैसे करने वाला है। दैट इज़ अ इनडायरेक्ट मैसेज वी गिविंग टू द सबकॉन्शियस माइंड। ओके, तो हमें क्या करना है, हमारे सारे इनकम्प्लीट्स को ख़त्म करना है। सी लकीली वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम राइट नाउ। ओके, तो माय सजेशन इज मेक अ लिस्ट ऑफ इरिटेशंस। ओके, आप एक पूरा लिस्ट बनाइए इनकम्प्लीट चीज़ों का। हो सकता है कोई पर्टिकुलर बैंक अकाउंट्स है जो डॉर्मेंट है, वो बंद नहीं हुए हैं, कुछ इंटरनेट कनेक्शंस है जो ऐसे ही यूज़ कर रहे हैं, उसका आप बिल्स पे कर रहे हो लेकिन आप उसको यूज़ ही नहीं कर रहे हो, या कुछ फ़ोन के कनेक्शंस है जो ऐसे ही पड़े हुए हैं जो यूज़ नहीं हो रहे, कोई कबर्ड्स है जो खाली करने बाकी है, आपके एटिक में सारा कचरा भरा हुआ है, आपकी कार की डिक्की में अंदर पीछे कचरा भरा हुआ है, कुछ लोगों को माफ़ करना बाकी है, वो माफ़ करना बाकी है, या फिर उनके साथ में बातचीत करके वो चीज़ को कंप्लीट करना बाकी है। हो सकता है कि आपको किसी को पैसा देना बाकी है, इट कुड बी अ वेरी स्मॉल अमाउंट, लेकिन वो देना बाकी है, या किसी से लेना बाकी है। These are all incomplete things which are taking up your memory. Okay, so I want all of you to do one exercise which is a very very important exercise. देखो ये सारा चीज़ें ना हमारे माइंड को क्लटर करता है, एंड माइंड जब क्लटर होता है तो ज़िंदगी क्लटर हो जाती है। इनफैक्ट अ क्लटर्ड होम इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ अ क्लटर्ड माइंड। तो अगर माइंड को हमें ठीक करना है तो बाहर की दुनिया को ठीक करना ज़रूरी है। बाहर की दुनिया ठीक हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली द माइंड विल गेट decluttered. ओके, दीज आर ऑल इंटरकनेक्टेड. सो लेट अस declutter our lives. The best way to do that is you make a list of all the irritations that are there in your life. Okay, make a complete list of all the irritations that are there in your life. अब सबसे पहले आप शुरू करें अपने घर से। ओके, तो अपने घर से कैसे शुरू करेंगे, तो पूरे घर में सारे कमरों को देखो। Now Nishad is saying video is stopped again. So I hope the video is working for most people. Can anybody confirm that the video is working fine?
Binay saying you can't hear. Okay, we are having technology issues. Amit Mishra is saying working. Dekho. So isn't this a little funny? It looks like there are certain places where the internet is not good today. So it's okay. Let's deal with it. Dr. Syed says, what is the third D? So Dr. Syed, the first D is do it. Second is delegate it. Third is delay it. And fourth is dump it. ओके सो ये चार चीज़ों में से हर चीज़ को करना है, लेकिन सबसे पहले हम अपनी लिस्ट को तैयार करना ज़रूरी है. ओके तो अपने लिस्ट को तैयार करिए, अपने पूरे घर में हर एक कमरे को देखिए. गो इन टू एवरी सिंगल रूम एंड सी व्हाट आर द अनफिनिश्ड थिंग्स दैट यू आर सीइंग. ओके मे बी देयर इज़ अ डोर विच इज़ स्क्वीकिंग एंड इट नीड्स टू बी रिपेयर्ड. मे बी देयर इज़ अ टैप विच इज़ लीकिंग. धीरे धीरे पानी गिर रहा है और बरसों से गिर रहा है, लेकिन हमने उसके लिए कुछ किया नहीं. तो उसका एक लिस्ट बनाइए, उस टैप को फिक्स करना है. Maybe there is a paint which is removed and paint खराब है और दीवार बहुत ख़राब लग रही है. Write it down that this wall needs to be repainted. Okay, all those drawers, all those cupboards, all those places which need to be completed and cleaned and decluttered, उसका पूरा एक लिस्ट बनाइए. Okay, उसके बाद आप अपने ऑफिस के बारे में सोचिए. Yes, thank you पूनम जी for confirming. अपने ऑफिस में अभी तो हम जा नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी आप मेंटली थोड़ा सा आंखें बंद करके विजुलाइज करिए पूरी ऑफिस को. अगर आपकी कोई फैक्ट्री है तो फैक्ट्री को विजुलाइज करिए. अगर आप कहीं पे जॉब करते हो तो आप अपने डेस्क को विजुलाइज करिए कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको लगती है जो पेंडिंग है. उसका भी एक लिस्ट बनाइए. एंड देन थिंक अबाउट ऑल द थिंग्स दैट आर पेंडिंग फॉर योर ओन लाइफ. ओके मतलब आपके पर्सनल लाइफ में क्या पेंडिंग है, फाइनेंशियल लाइफ में, हेल्थ के एरिया में, रिलेशनशिप्स के एरिया में. वो सारी चीज़ें जो आपको इरिटेट कर रही है या इनकम्प्लीट है, वो सारी चीज़ों का लिस्ट बनाइए. सो दिस इज़ नोन एज द इरिटेशंस एंड अ टॉलरेशंस लिस्ट. जो चीज़ें हम इरिटेट करते हैं, जो हम टॉलरेट करते आए हैं, जो हमने इनकम्प्लीट रखा हुआ है, वो सारी चीज़ों का एक लिस्ट बनाओ. और उसके बाद एक दूसरा कॉलम बनाओ जहाँ पे आप लिखोगे कि उसको कौन करेगा. उसके ओके तो या तो हम खुद करेंगे, दैट मीन्स डू इट, या तो हम किसी और को उसको सौंप देंगे, दैट मीन्स डेलीगेट इट. ओके सो ये लिस्ट में खाली वही चीज़ आएगी जो आप या तो करना चाहते हो, या आप खुद करना चाहते हो, या दूसरे किसी से कराना चाहते हो. ऑल द अदर थिंग्स वेयर यू आर डिलेइंग इट, डिले वाला भी लिखिए इसमें, लेकिन डंप जो कर दिया, जो आपको लगता है कि अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप उसको प्लीज़ निकाल दीजिए. ओके नाउ व्हाट एंड देन द थर्ड कॉलम इज गोइंग टू बी बाय व्हाट डेट विल यू कंप्लीट इट. नाउ अगर लिस्ट बहुत बड़ा है तो वो एक चीज़ एक साथ में कंप्लीट नहीं होगी, तो आप उसको अच्छे से शेड्यूल कर दीजिए कि ये चीज़ कितने महीनों में मुझे कंप्लीट करना है. आइडियली आई वुड से दैट इफ़ यू पे अटेंशन टू दिस यू कैन ईजिली कंप्लीट इट विद इन अ टाइम फ्रेम ऑफ 3 months. एंड लकीली हमारे पास नेक्स्ट कुछ दिन तो वैसे भी फ्री पड़े हैं, तो क्यों ना हमारे घर के इनकम्प्लीट चीज़ों को कंप्लीट कर ले, एटलीस्ट जो हमारे हाथ में है. कुछ चीज़ों के लिए शायद आपको कारपेंटर को बुलाना पड़े, प्लम्बर को बुलाना पड़े, मे बी दैट इज़ नॉट पॉसिबल राइट नाउ, बट देर आर सर्टन थिंग्स दैट आर कनेक्टेड विद decluttering, cleaning, all of that can definitely be completed. So let's try to finish up all those unfinished tasks, closing bank accounts, closing unwanted telephone connections. ये सारी चीज़ें आप बैठे बैठे अभी घर पे कर सकते हो. तो we can definitely try to complete all these messes. declutter करो, सब कुछ क्लियर करो. जैसे ही ये सब करोगे तो आप देखेंगे आपका माइंड पूरी तरह से खुलने लगेगा. इट्स गोइंग टू ओपन अप. मैंने कितनी बार ये एक्सरसाइज मेरे वर्कशॉप में दी है और लोगों ने कहा है कि मिरेकल्स हुए लिटरली व्हेन दे हैव स्टार्टेड क्लियरिंग अप देयर स्पेसेस. नए अपॉर्चुनिटीज़ आने लगी उनके लाइफ में, नए रिश्ते जुड़ने लगे. जो लोगों के रिश्ते में प्रॉब्लम्स थे वो पुराने रिश्तों को उन्होंने माफ़ कर दिया, तो नए रिश्ते खुलने लगे उनके जीवन में. बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में बदलने लगती है. ओके एंड बाय द वे, जब कोई भी चीज़ क्लटर्ड होती है तो इट कलेक्ट्स नेगेटिव एनर्जी. समझो आपके कोई भी ड्रॉअर के अंदर कचरा भरा हुआ है तो इट इज़ कलेक्टिंग नेगेटिव एनर्जी, एंड दैट नेगेटिव एनर्जी इज़ अफेक्टिंग आवर माइंड नोइंगली और अननोइंगली. इसीलिए तो इतने सारे प्रैक्टिसेस होते हैं जैसे वास्तुशास्त्र या फेंग शुई एंड ऑल दैट. व्हाई इज़ दैट सेइंग, व्हाई इज़ दैट प्रैक्टिस फॉलोड बाय पीपल? It is basically to keep your space clean, to keep your mind clean. And when all that happens, the end result is the mind is clean. और जब mind clean है तो आप अपने काम को सही ढंग से कर सकते हो. Okay?
सो फाइनली रिमेंबर आवर लाइफ इज क्रिएटेड विथ आवर माइंड. तो अगर हमारे माइंड में डिस्टर्बेंस है, बहुत सारा क्लटर भरा हुआ है, बहुत सारी पेंडिंग चीज़ें हैं, तो माइंड फंक्शन कैसे करेगा? हाउ विल द माइंड फंक्शन? ओके, सो वी नीड टू lighten up the mind, clear up all those unwanted stuff, so that you can literally create the success and the happiness and the joy and bring more abundance into your life. Okay, so this was the principle I wanted to share with you. Let me see if I have missed anything here. Yes, I think this is all I wanted to cover today in terms of the success principle. Okay, so before we move on to the meditation, what are the things that we covered today? We talked about the power of collective consciousness. जो आज हमने दिया का एक्सरसाइज किया, that was once again a power of collective consciousness. जो रोज़ हम मेडिटेशन कर रहे हैं, वो भी हम पावर ऑफ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ही यूज़ कर रहे हैं. जितने लोग साथ में मिल कर के मेडिटेशन करेंगे, उतना ही ज़्यादा हमारा अर्थ जल्दी हील होगा. ओके, फिर हमने आज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सक्सेस प्रिंसिपल डिस्कस किया. व्हाट इज द सक्सेस प्रिंसिपल? कैन एनीबॉडी टाइप इट आउट फॉर मी? व्हाट इज द सक्सेस प्रिंसिपल दैट वी डिस्कवर्ड टुडे? ट्रस्ट मी, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ सक्सेस. छोटा सा प्रिंसिपल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम अपने जीवन में से मैसेज कंप्लीट करते हैं, सो द सक्सेस प्रिंसिपल वाज क्लीन अप योर मैसेज एंड इनकम्प्लीट्स. या वेरी गुड. जब हम डीक्लटर करते हैं तो एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी निकल जाती है. यस यस जयश्री जी, इट इज़ वन ऑफ द वेज टू रिमूव नेगेटिव एनर्जी. आई एम नॉट सेइंग दिस इज द ओनली वे टू डू दैट, बट दिस इज वन ऑफ द वेज टू डू इट. ओके, तो हमें डीक्लटरिंग करना है, अपने माइंड को खाली करना है और पूरे कचरे की सफाई करनी है. आपके पूरे घर की वाइब्रेशन बदल जाएगी. घर की वाइब्रेशन बदलेगी तो आपकी खुद की वाइब्रेशन बदलेगी, और आपकी वाइब्रेशन बदलेगी तो आपकी वाइब्रेशन ऊपर आएगी. यू विल फील मच बेटर, यू विल फील मच मोर लाइटर, यू विल बी इन द प्रेजेंट मोमेंट. आप और अच्छी तरह से अपने चीज़ों को अचीव कर पाओगे, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू विल बी एबल टू लिव अ मोर ब्यूटिफुल लाइफ एंड अट्रैक्ट मोर ब्यूटिफुल थिंग्स इन टू योर लाइफ. ओके, so Amit says making sure that we declutter everything. Vaibhav also says completing finished tasks. Sanjeev ji says cleaning up all the messes and your incompletes. Excellent. So that is the principle that we learned today. Can anybody talk about the 4 Ds? Yes, Rahul says 4 Ds. What are the 4 Ds? 4 Ds क्या क्या है? Can anybody share the 4 Ds? Very good. Amit Mishra says do it. What is the second one? Delegate it, delay it, or dump it. Awesome. Awesome, Amit. Awesome, Geeta. Very good. So these are the 4 things by which we can get lot of the incomplete stuff finished in our minds. Okay, जैसे मैंने आपको कंप्यूटर के अंदर अगर बहुत सारी फाइल्स खुली है, तो अनफॉर्चुनेटली कंप्यूटर विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म. आपके फ़ोन में अगर बहुत सारे ऐप्स खुले हैं, तो आपका फ़ोन या और बहुत सारी मेमोरी अंदर भरी हुई है, तो योर फ़ोन विल बिकम एक्सट्रीमली स्लो. तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स टू क्लियर अप द माइंड. ओके, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी. वेरी गुड. एवरीबॉडी इज अंडरस्टूड द सक्सेस प्रिंसिपल्स. ब्रिलियंट. तो इस तरह से हम बहुत सारे एडिशनल सक्सेस प्रिंसिपल्स फॉलो करने वाले हैं. आज वी आर टुडे ऑन डे 12 ना. वी आर ऑन डे 12 टुडे, एंड वी स्टिल हैव अनदर 9 days टू गो, इन विच वी विल कवर एटलीस्ट अनदर 10 to 12 प्रिंसिपल्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये सारे प्रिंसिपल्स को अगर आपको डिटेल में समझना है, तो प्लीज़ रीड दिस बुक द सक्सेस प्रिंसिपल्स बाय जैक कैनफील्ड. ओके, और उसको अगर प्रैक्टिकली समझना है, तो जैसे मैंने आपको कहा था, आप मेरे वर्कशॉप को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम और डिटेल प्रैक्टिकल तरीके से इसको हम सीखेंगे. ओके, सो नाउ लेट्स गेट रेडी फॉर द मेडिटेशन. आज सिस्टर शिवानी ने भी बहुत अच्छा, सिस्टर शिवानी फ्रॉम ब्रह्म कुमारी, शी हैड गिवन अ ब्यूटिफुल मेडिटेशन फॉर डूइंग फॉर द 9 minutes. तो आई एम गो टू
it is similar to what we have been doing in the last so many days, but we'll go a little more detailed. We'll do a little more detailed meditation today, okay? So हमें वही भावना अपने माइंड में रखनी है कि पूरा वर्ल्ड इज गेटिंग हील्ड, इट इज़ एवरीबडी इज़ कमिंग बैक टू नॉर्मल. जितने लोग सफ़र हो रहे हैं इस वायरस से, वो लोग, उनको भी हीलिंग मिल रही है. और जो कोई कुछ लोग जो गुजर गए, उनके फैमिलीज़ को भी हम हीलिंग भेजेंगे, ओके? सो लेट्स स्टार्ट विद द मेडिटेशन. एवरीबडी सिट इन द रिलैक्सेशन पोजिशन. Please sit in the relaxation position. Make sure your back is well rested, spine is straight, hands and legs are not crossed. Gently close your eyes and start taking deep, long breaths. लंबी और गहरी सांसें लेना शुरू करें. And as you start taking deep, long breaths, you allow yourself to go deeper and deeper and deeper into relaxation. अपना पूरा ध्यान अपने सांसों की ओर रखें. सांस अंदर जा रही है और सांस बाहर आ रही है. Just stay focused on your breathing. जब आप सांस अंदर लेते हो तो ऐसा महसूस करें कि इस ब्रह्मांड की सारी अच्छाइयाँ आपके अंदर जा रही है. और जैसे आप सांस बाहर निकालते हो तो ऐसा महसूस करें कि आपके अंदर सारा तनाव, सारे टेंशन, सारे चिंताएं, वो सारी चीज़ें आपको छोड़ के जा रही है. With every breath, you're going deeper and deeper and deeper into relaxation. एक गहरी सांस लीजिए और सांस बाहर निकालते हुए अपने दोनों हाथ, दोनों पैरों को पूरी तरह से ढीला छोड़ दीजिए. रिलैक्स बोथ योर हैंड्स एंड योर लेग्स completely. Just let them go loose. Relax all the bones, all the muscles, all the tissues, all the cells of your hands and your legs completely. Just let them go loose. आपके दोनों हाथ और दोनों पैर पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं. अपना पूरा ध्यान आपके सांसों की ओर रखें. सांस अंदर जा रही है और सांस बाहर आ रही है. एक गहरी सांस लीजिए और सांस बाहर निकालते हुए अपने स्टमक के मसल्स को ढीला छोड़ दीजिए. अपने पेट के मसल्स को रिलैक्स कर दीजिए. सीने के मसल्स को रिलैक्स कर दीजिए और आपके पीठ के सारे मसल्स को पूरी तरह से ढीला छोड़ दीजिए. रिलैक्स ऑल द ऑर्गन्स, ऑल द बोन्स, all the muscles, all the tissues, and all the cells of your abdomen area, chest area, and your entire back completely. Just let them go loose. Keep all your attention focused on your breathing. Feel the air going in and coming out, going in
and coming out. Take a deep breath, and while exhaling, relax your shoulder muscles. अपने कंधों को रिलैक्स कर दीजिए. Relax your neck muscles. गर्दन के मसल्स को ढीला छोड़ दीजिए. And relax all the muscles of your face completely. Just let them go loose. Relax your chin, your cheeks. Relax the tongue, the teeth. Relax your lips, your nose. Relax your eyes and all the muscles around the eyes. Relax your ears, your forehead. Relax the temples and all the muscles on top of your head completely. Just let them go loose. Your entire body, right from the bottom of your feet, going all the way to the top of your head, is now completely relaxed. Relax, relax, relax. Now that your body is completely relaxed, we will now relax the mind. अपने मन को रिलैक्स करने के लिए विजुलाइज करिए कि आप एक बहुत ही सुंदर स्टेयरकेस के ऊपर खड़े हो और आप देख रहे हो कि आपके सामने ही वो स्टेयरकेस नीचे की ओर जा रही है और उसके 20 स्टेप्स है. I will now count down from 20 to 1, and as I count down from 20 to 1, with each count you will go deeper and deeper and deeper into your subconscious mind. With every step, you will go 1,000 times deeper into your subconscious mind. So starting with 20, धीरे धीरे staircase के नीचे जाना शुरू करिए. 19, 18, 17, going deeper and deeper. 16, 15, 14. With every step, you're going 1,000 times deeper into your subconscious mind. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Now you find yourself at the bottom of the staircase, standing deep down in the subconscious mind. As soon as you find yourself at the bottom of the staircase, you see a beautiful corridor in front of you, and at the end of the corridor you see a beautiful door. आपके सामने बहुत ही सुंदर पैसेज है और पैसेज की दूसरी ओर एक बहुत ही सुंदर दरवाज़ा है. तो धीरे धीरे अब आप इस पैसेज पे चलते चलते उस दरवाजे की ओर जाइए. Start moving towards the door. अब आप दरवाजे तक पहुंच चुके हो. आपको वो सुंदर दरवाज़ा दिखता है, आपके सामने ही है. उसका हैंडल आपको दिखता है, तो आप अपना एक हाथ उठा करके हैंडल को पकड़ते हो, उसको घुमाते हो और दरवाजे को अपनी ओर खींचते हो और दरवाज़ा खुल जाता है. दरवाज़ा खुलते ही आप दरवाजे के बाहर जाते हो और जैसे ही आप बाहर जाते हो तो आप अपने आप को दुनिया की एक बहुत ही खूबसूरत जगह में पाते हो. ये एक ऐसी जगह है जो आपको बहुत ही पसंद है. हो सकता है कोई हिल स्टेशन हो या कोई गार्डन या कोई बीच या कोई भी ऐसी जगह जो आपको बहुत ही पसंद है.
और जैसे ही आप उस सुंदर जगह में पहुंच जाते हो, आपका मन पूरी तरह से शांत हो जाता है। उस जगह को पूरी तरह से महसूस करिए। ठंडी हवा को महसूस करिए आपके चेहरे पे। यू कैन फील इट। यू कैन ऑल्सो फील द वार्मथ ऑफ द सनलाइट। There are lots of birds in the sky and on the trees. You can hear the chirping of the birds. You can smell the fragrance of the flowers around you. You can also hear the waterfall which is there somewhere around you. And as you experience this beautiful place, your mind becomes more and more peaceful. इस समय आपका शरीर और आपका मन दोनों ही पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं. You are now in the deep alpha state of mind. The alpha state of mind is a highly beneficial state. In this state, you are connected with your subconscious mind and you have access to the infinite intelligence that exists within you. इस अवस्था में आप जो भी मनोचित्रण करते हो और जो भी स्वसूचन करते हो, वो चीज़ें आपके जीवन में सच बनकर ही रहती है. Whatever you visualize and affirm in this state of mind comes to physical reality in your life. So now, notice that you are in that beautiful place. आप उस सुंदर जगह में हो. आपके परमात्मा आपके सामने ही खड़े हैं. You can see your own God. You're very happy to see Him. And you're expressing your deepest gratitude for whatever you already have in your life. The very fact that we are alive today, breathing. Thank you so much, God, for giving me one more day so that I could serve my family, my community, and the world at large. Thank you so much, God, for my body, my hands, my legs, my eyes, because of which I am able to do all my work on my own. मैं सारा काम खुद कर पा रहा हूँ. मुझे किसी पे डिपेंड नहीं होना पड़ रहा है. And I am also able to live my purpose on this planet. Thank you, God, for my amazing mind, through which I am able to come up with creative solutions to any problem, to come up with ideas to achieve my goals. So thank you so much for my amazing mind. Thank you, thank you, thank you. Thank you, God, for all the people in my life. जितने भी लोग मेरे लाइफ में उसके लिए thank you. Starting with my parents who brought me to this world. Remember your parents today. Thank them, because we are here only because of them. Thank you to all my teachers and my gurus who made me the person I am today. Teachers and gurus include everybody from which we have learned some lessons. So thank you to all those teachers and all my gurus who have made me the person I am today. Thank you to my beloved family, my spouse, who's always there to love and support me through the journey of life. Thank you to my children who add so much meaning into my life. Thank you to all my other relatives, all my family members, and all the other people in my life, including my team members, my staff, all the people who serve me throughout the day, right from the milkman in the morning to the security person at the gate, to the policeman on the road, to the sabji wala and the fruit wala and everybody. So thank you to everybody. Thank you, God, for all the abundance in my life.
right from the air that I breathe, the clean air that I am able to breathe. I know there are so many countries where there is not even clean air to breathe, so I'm very grateful. Clean water to drink, food, abundance in food, my home, which gives safety and security to my family, my office, my car, all the technology, all the appliances which make my life so much easier, all the money, the prosperity, everything that is there in my life. Thank you so much, God, for all these blessings. I'm feeling truly blessed today for all these blessings. Thank you, thank you, thank you. Now we'll seek forgiveness from God. परमात्मा हमारे सामने ही है. हमें पता है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी आज हो रहा है, it is the result of our past doings, past actions, past karmas. तो उसको हमें रिलीज़ कराना है, उससे हमें रिलीव होना है. तो वी आर गोइंग टू सीक फॉरगिवनेस फ्रॉम गॉड. परमात्मा को सब कुछ पता है, हमें पता नहीं, लेकिन उनको तो सब पता है. तो रिपीट दिस प्रेयर आफ्टर मी इन योर माइंड. डियर गॉड, प्लीज़ फॉरगिव मी if I have hurt anybody or have hurt Mother Nature directly, indirectly, knowingly, unknowingly, in this life or any of my past lives, if I have hurt anybody or if I have hurt Mother Nature through my thoughts, words and deeds, then please forgive me. प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए. दिल से माफ़ी मांगनी है. Visualize that, remember that God is always loving, always kind, always full of mercy and grace. So visualize a beautiful white shining light coming from Him. This is the divine healing light coming from Him and covering all the 7 billion plus billion people on the planet. और इस ब्यूटीफुल लाइट से हमारे अंदर के जितने भी पुराने कर्म है जो हमें आज परेशान कर रहे हैं, वो सारे कर्म आप देखिए कि दे आर ऑल बीइंग वॉश्ड अवे, मेल्टेड इनटू दिस ब्यूटीफुल डिवाइन लाइट. Visualize that your family is covered with this light and all the karmas are being washed away. Visualize yourself to be covered with this beautiful white divine healing light and all the karmas being cleaned away. And this same beautiful light is cleansing and deneutralizing all the coronavirus, or neutralizing all the coronavirus. सारा वायरस इस लाइट में मर्ज हो जाता है, उसी में मिल जाता है, and it is no longer any harm to anybody. And now see that this beautiful white shining light is protecting everybody. There's a beautiful light around each one of us, which is making us completely safe, completely protected. And visualize the same thing for all the 7 billion people on the planet. Thank you, thank you, thank you, dear God, for your divine grace. Thank you so much. Now let us send out our love, appreciation and gratitude to all those people who are working day and night, selflessly working to serve all those people who are suffering right now. All the doctors, please send your healing energies, your wishes, love to all the doctors, nurses, the staff, the paramedical staff, all the support staff, and also all the people who are making sure that all the essentials are supplied every day. The milk, the vegetables, fruits, grains,
जो भी रोज़ की चीज़ें हैं ये लोग सप्लाई कर रहे हैं, अपना खुद का ना सोचते हुए भी everybody is doing this. All those people who are doing this, send your love, send your healing energies and your gratitude and your deepest appreciation to all these people. Thank you, thank you, thank you. Now take a few moments to visualize your most important goal. जो आपका सबसे important goal है उसको विजुलाइज करिए कि वो अभी सच हो रहा है आपके सामने। आपको आसपास के लोग कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। फील द हैंडशेक्स, फील द वर्ड्स दैट पीपल आर टेलिंग यू, हियर द साउंड्स, विजुलाइज द पिक्चर्स, फील द फीलिंग्स। ऐसे महसूस करिए कि अभी आपके सामने वो सच हो रहा है। और क्योंकि आपका ये सपना पूरा हुआ है तो आपको बहुत ही खुशी महसूस हो रही है। यू आर जंपिंग विद जॉय, फीलिंग वेरी हैप्पी दैट यू हैव अचीव्ड योर बिग गोल, योर ड्रीम गोल, एंड यू आर वेरी ग्रेटफुल टू गॉड। परमात्मा आपके सामने ही, उसको आप थैंक यू कह रहे हो। Thank you God for fulfilling my biggest dream, my biggest wish. Thank you, thank you, thank you. Now we'll do a little visualization for our entire planet, that it is coming back to normal. तो विजुलाइज करिए कि यू हैव जस्ट गॉटन अप इन द मॉर्निंग, आप जस्ट अभी उठे हो। आपके नीचे आपके मैट्रेस को फील करिए, पिलो को फील करिए, आपने जो कंफर्टर ओढ़ा हुआ है उसको भी आप फील करिए। और आपकी आंखें खुली है, आप बाहर विंडो के बाहर देखते हो तो काफ़ी सारा उजाला है। आप नोटिस करो कि दिन हो चुका है, अभी अभी द सन हैज़ रिजन एंड यू कैन हियर अ डोर बेल। तो आप थोड़े से सरप्राइज हो जाते हो, तो किसने घंटी बजाई इतनी जल्दी अर्ली मॉर्निंग। तो आप अपने बेड में से उठ करके यू वॉक टूवर्ड्स द डोर, विजुलाइज एंड फील दैट यू आर वॉकिंग टूवर्ड्स द डोर। आप दरवाजे के पास आ चुके हो, दरवाज़ा खोलते हो, आपका न्यूज़पेपर वाला सामने है, ही इज़ हैंडिंग ओवर द न्यूज़पेपर टू यू, ही इज़ वेरी हैप्पी। आज कुछ तो गुड न्यूज़ है, दैट इज़ वॉट यू रियलाइज, समथिंग इज़ रियली गुड, यू कैन सेंस इट इन द एयर, यू कैन फील इट। और जैसे ही आप न्यूज़पेपर हाथ में लेते हो और उसको खोलते हो तो आप एक बड़े हेडलाइंस देखते हो, finally the world is back to normal, coronavirus is completely gone। ये वर्ड्स को क्लियरली देखिए, न्यूज़पेपर पे विजुलाइज करिए, यू कैन सी द डिटेल्स। आप थोड़ा सा डिटेल्स भी पढ़ते हो, उसमें आप देखते हो कि सारे कंट्रीज, ऑल अवर इंडियंस, अपना सारा इंडिया फ्री ऑफ वायरस, ऑल द अदर कंट्रीज आर ऑल्सो फ्री ऑफ द वायरस, and the world is completely safe. You see that this has happened because of lot of work that the scientists have done, the doctors have done. काफ़ी सारे वैक्सीन्स जितना सोचा था उससे भी बहुत जल्दी डेवलप हो गए, और ये वैक्सीन से वायरस कंप्लीटली सिस्टम में से बाहर चला गया। सारे लोग हील हो चुके हैं, and you're jumping with joy, you're very very happy, completely happy। और ये न्यूज़ आपके घर में आप सबको देते हो तो घर में भी सब बहुत ही खुश हो जाते हैं, नाचते हैं, झूमते हैं। और आपके सोसाइटी में भी सारे लोगों को पता चल गया तो सब लोग, देयर एवरीबडी इज विस्लिंग, प्लेइंग बेल्स, विसल्स, थालियों को बजा रहे, सारा आवाज़ चारों तरफ से गूंज उठ रहा है।
and there is so much happiness, so much joy, that the world is now completely back to normal. And you're very, very grateful to God. आप अपने दिल से थैंक यू कहते हो, थैंक यू गॉड that the world is now back to normal. Thank you, thank you, thank you. और अब आप घर के खिड़की में से बाहर देखते हो तो आप देखते हो रास्ते में फिर से वही बज़ है, एनर्जी है, एंथुजियाज़म है, बहुत सारी कार्स है, सब लोग अपने ऑफिस की ओर जा रहे हैं. यू आर ऑल्सो एक्साइटेड कि आज ऑफिस में जाना है. आपके बच्चे भी रेडी हो रहे हैं, सब फैमिली मेम्बर्स भी रेडी हो रहे हैं. एंड एवरीबडी इज़ एक्साइटेड टू गो बैक टू वर्क. कितने दिनों से गए नहीं थे. And you're now leaving home with feeling of freedom, and you're also feeling, you're looking at your family members and saying that wow, इतना सारे challenges थे लेकिन हम उसको भी हमने पार कर लिया. And all our family members are safe, completely protected. And you're repeating these commands in your mind as you leave for office. You're repeating these affirmations in your mind. I am always safe and divinely protected. Visualize करिए कि आप पूरी तरह से safe हो. There's a white light around you which is protecting you like a shield. My family is always safe and divinely protected. Visualize करिए कि आपके family members जहाँ पे भी है सब लोग एकदम safe है. They're all covered with beautiful white shining light. Feel the safety. Visualize that all the 7+ billion people are now safe and divinely protected. Visualize करें कि हर इंसान completely healed है, happy है, healthy है, उनका body भी fit है, healthy है, mind एकदम strong है, fearless है, पूरे energy से भरा हुआ है, full of power, purity, faith, पूरे विश्वास के साथ में हर इंसान खुश है और अपने जीवन को अच्छी तरह से जी रहा है. और यही सोच के साथ आप घर से निकलते हो और बाहर बहुत सारे लोग आपको मिलते हैं और सब लोग बहुत खुश है. कुछ लोग गले मिल रहे हैं, कुछ लोग हाथ मिला रहे हैं. इतने दिनों से गले भी नहीं मिले, हाथ भी नहीं मिलाया, तो आपको बहुत खुशी हो रही है. एंड यू कैन सेंस अ फीलिंग ऑफ वार्मथ, ऑफ हैप्पीनेस, ऑफ काइंडनेस, ऑफ कंपैशन, ऑफ हेल्पिंग वन अनदर. आपने देखा कि इस मुश्किल की घड़ियों में कितने लोगों ने एक दूसरे को हेल्प किया. एंड यू आर वेरी ग्रेटफुल टू एवरीबॉडी. यू कैन सी द बिग शिफ्ट इन द पीपल, इन द कॉन्शियसनेस ऑफ द पीपल. जितने भी लोग आपको रास्ते में मिले सब लोग हंस रहे हैं. एवरीबडी इज हैप्पी, एवरीबडी इज एंजॉइंग. देयर इज अ लॉट ऑफ जॉय, लव, पीस, हैप्पीनेस, कंपैशन एंड हेल्पिंग वन अनदर ऑन दिस प्लैनेट नाउ. ये सारा चीज़ें देखते हुए आप परमात्मा को डीप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हो कि थैंक यू गॉड दैट इन स्पाइट ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स दैट वी हैव गॉन थ्रू, the world has emerged to be a much more beautiful place to live in. Very different place. You can sense the vibrations. Lots of love, joy, happiness. Everybody respecting one another, respecting Mother Nature, taking care of Mother Nature. और आप देख रहे हो कि फिर से सतयुग का निर्माण हो रहा है. The good times are coming back again. And you look up into the sky and you're shouting out to God, thank you so much God for making this happen, for bringing back the human being to its true form, of love, of bliss, of powerful, being full of power, joy, happiness, peace and purity. Thank you, thank you, thank you. Wonderful.
Now we'll come back out of the deep alpha state. I'm going to count up from 1 to 10. And as I count up from 1 to 10, you will slowly come out of the deeper levels of your subconscious mind. And at the count of 10, when you open your eyes, you're completely well rested, deeply relaxed, feeling calm and peaceful, ready to go to sleep. 1, 2, 3, 4, coming out slowly, 5, 6, 7. At the count of 10, when you open your eyes, you will be completely fresh, feeling calm, deeply relaxed, feeling peaceful and ready to take a beautiful night's sleep. 8, 9. You may please rub your palms together. दोनों हाथ को रब करिए. Put them on your eyes. Feel the warmth of your palms on your eyes. And 10. Slowly take your hands off your eyes. And as you take your hands off your eyes, and as you open your eyes, you're feeling calm, feeling peaceful, feeling joyful, deeply relaxed, ready to take a beautiful night's sleep. Thank you, thank you, thank you everybody. Wonderful. So how is everybody feeling? I'm sure everybody is ready to go to sleep. Feeling nice, calm and peaceful. कैसा लग रहा है सबको? Okay, Ramakrishna says thank you. How is everybody feeling? Amit is saying namaste. Padmaja is saying feeling fresh. Padma is saying peaceful. Triveni is saying peaceful. Ujjwala is saying peaceful. Remember, when all of us are feeling so peaceful and we are sending out these peaceful thoughts, every mind on the planet will catch this vibration. Vibrations are very, very powerful. Yeah, Neha says relaxed. Thank you, Sunil sir. Dev is saying wonderful as always. Pandurang Chogle is saying very nice. Padmaji is saying thank you. Nilesh is saying fresh, energetic. Kamlesh is saying very calm and peaceful. Hema is saying very calm and nice. Beena ji is saying fantastic, fresh. Deepak ji is saying wonderful. Vaibhav is saying wonderful, peaceful. Himanshu is saying thank you, sir. So thank you everybody for joining me on day 12. What is your learning for today? What is the one action you're going to take from tomorrow? क्या करेंगे? Jayashri ji is saying refreshed. Umesh ji is saying thank you. Poonam ji is saying relaxed and peaceful. So what is the one learning you have taken from today और इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे लाइफ में? Shri Shivaram is saying calm and peaceful. Anita ji is saying peaceful and fresh. Thank you so much. Yes, Jai Shri ji. Decluttering. अपने घर को declutter करना, अपने mind को declutter करना, unfinished काम को ख़त्म करना. Thankan ji says clearing all the clutters and the 4D and using 4D. Beena says declutter. Yes, पूरे mind को clean करना है. Hopefully when we meet again tomorrow, some of the decluttering would have happened already. Okay, Pandurang ji says decluttering. Yes, Nilesh says to make a list, to-do list, a irritation list जिसको हम कहते हैं. Okay, don't be in the victim mentality. Very good. Beena says don't be in the victim mentality. Vaibhav says finish smallest pending things which is taking up the space in your mind.
Padma says upgrade new skills. Very good. But the biggest learning I want all of you to take from today is to declutter. पूरे माइंड को खाली करो, एम्प्टी करो, पुरानी चीज़ों को कंप्लीट करो. दिस इज़ अ ब्यूटिफुल टाइम टू रीबूट एंड रिफ्रेश अवर लाइफ. पुराने सारी चीज़ों को ख़त्म करो. अगर किसी के साथ में ग्रजेस है, रिवेंजफुल फीलिंग्स है, हर्टफुल फीलिंग्स है, सबको माफ़ करके कंप्लीट करो. Siddhant says keep smiling and stay positive. Nice to see you, Siddhant. Very good. Great. Thank you, everybody. Thank you so much. Please leave a comment today. कि आप क्या action लेने वाले हो? I want all of you to leave at least one comment today. What is the action you're going to take? Very good. Bina says the power of collective consciousness. Thank you, thank you, thank you, everybody. It's 11:15, so I will let all of you go to sleep now. Wish you all the best, and I will see you tomorrow, day 13, 9:30 sharp. Sarita ji says joined late, so listening now. Yes, Sarita ji. Thank you. Very good. Looking forward to see all of you tomorrow. And looking forward to see a lot of you on the workshop on the 9th, 10th, 11th and 12th. काफ़ी सारे लोगों ने साइन किया. I think we have almost about 50 people who have signed up. And we have still more people signing up. So we have a few more seats now. Good night, everybody. Good night. Good night. Good night. Nilesh says, I will finish 2 things tomorrow. Awesome. Very good. कम से कम एक काम भी ख़त्म करेंगे रोज़ तो भी कितना सारा ख़त्म हो जाएगा. ओके. थैंक यू सो मच. वेरी गुड. सोनिका जी says cleaning up all the negativity by cleaning the house, rooms, mind, everything. Sarita ji says declutter. Vaibhav says finish all the pending tasks one by one. Okay, thank you so much, everybody. Good night and wish you all the best. God bless you. Thank you so much. Bye-bye.